Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. This is the part 5 of the PYQ series we have started for the unit of teaching aptitude. I hope कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपके क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे along with the explanations. Now this is the QR code or the invite link for our UGC NET paper 1 telegram group. Starting with question number 1, it says Howard Gardner's theory of multiple intelligence suggests that intelligence is a single general ability, intelligence is fixed and cannot be developed, individuals have multiple types of intelligences, and IQ test measures all aspects of intelligence. So the correct answer is option number C, which says that multiple types of intelligence are possessed by an individual. और ये हमारी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी है: वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट. Question number 2. Which of the following are the characteristics of mind mapping? It is built around a central topic. Correct. Use of long sentences and paragraphs to explain the content. The branches of a particular topic from a particular topic form a connected nodal structure. Correct. Use of images and symbols to represent ideas. Correct. But इसमें हम long sentences और paragraphs का use नहीं करते हैं. So option number C, which is ACD, will be the correct answer. देखिए, ये माइंड मैप है, ये कोई आइडिया है हमारे पास, ठीक है. फिर ये हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये कुछ हमारे उससे रिलेटेड कुछ सब आइडिया है वो आ गया. फिर ये हमारा आइडिया 3 है, आइडिया 4, आइडिया 2. सो इस हिसाब से आप एक माइंड मैप क्रिएट करते हैं. बट इसमें हम लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस का यूज नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 3. Emotional intelligence involves all of the following except, वो एक चीज जो इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं आती है. सेल्फ अवेयरनेस आता है, सोशल स्किल्स आते हैं, मैनेजिंग इमोशंस आते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग फॉर आईक्यू टेस्ट नहीं आता है. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में हमारे सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स. These all are the components. Yeah, these all are the part of emotional intelligence. Question number 4. Which of the following best represents the reflective level of teaching? Reflective level की बात की है. Asking students to match vocab words with their definitions. Encouraging students to apply Newton's law to a real life incident. Having students recite and teaching students the date of key historical events. So option number B हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग या हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ऑल्सो नोन एज थॉटफुल लेवल. Question number 5. It says, which statement best captures the difference between integration and inclusion? Inclusion और integration के बीच में difference हमें बताना है. Integration, it allows children with disabilities. ये जो integration और inclusion है ना, वो एक concept है हमारा learning for all. ये उसमें से बना है, ठीक है. Integration, it allows children with disabilities to study in regular classrooms, while inclusion ensures curriculum and pedagogy adapt to all the learners. Option number A हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. जब हम बोलते हैं ना इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब कि जो जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है, जो स्पेशल चाइल्ड है, हम उनको अलाउ तो कर रहे हैं कि आप क्लासरूम में आओ,
और नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करो, लेकिन हम अपनी हैबिट्स, हम अपने जो सिस्टम है ना, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बच्चा आया है, जो स्पेशल चाइल्ड आया है, वो हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। लेकिन जो हमारा इंक्लूजन है वो क्या बोलता है कि एज अ टीचर, एज अ सिस्टम, एज अ स्कूल, ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन, हमें उस बच्चे के हिसाब से चेंज करना है। हमारे टीचिंग के मेथड्स हो गए, हमारे करिकुलम हो गया, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को बदलना है। सो दिस इज इंक्लूजन। देखिए, एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि हमने बच्चों को अलग रख दिया, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, ये हमारे स्पेशल बच्चे हैं, हमने उनको अलग रख दिया। सेपरेशन, हमने उनको सेपरेट ही कर दिया। इंटीग्रेशन, हमने उनको अलाउ तो किया कि नॉर्मल बच्चों के साथ बैठो, बट हम अपने जो हैबिट्स हैं, ठीक है, वी आर नॉट विलिंग टू चेंज आवर सेल्स एज पर देयर नीड्स। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चेंज करें। लेकिन इंक्लूजन क्या होता है कि हम सबको इक्वल चांस दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। दिस इज इंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following best illustrates evaluating level in Bloom's taxonomy? ठीक है, writing a summary of textbook, solving a math problem, comparing two theses and justifying which is more valid, and listing the causes of World War One. So evaluation का मतलब क्या होता है, हमने दो थ्योरीज को कंपेयर किया और हमने देखा कि कौन सी थ्योरी ज्यादा वैलिड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज्ड, रू आ ईसी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। उन्होंने इवैल्यूएटिंग का पूछा था। सो टू इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन अ स्टूडेंट माइंड अप्राइज, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सपोर्ट, सिलेक्ट, वैल्यू और इवैल्यूएट, ठीक है, वो देखेगा। सो इवैल्यूएशन इज द सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, टीम वर्क, सेल्फ बिलीफ एंड हैप्पीनेस, म्यूजिकल, एप्लीकेशन, और ये कुछ हमें इंटेलिजेंस के टाइप दिए। देखिए, म्यूजिकल हमें पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में आता है, तो जैसे ही सी का 4 आएगा हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए, उसके बाद टीम वर्क, सेल्फ बिलीफ, हैप्पीनेस एंड एप्लीकेशन। आप कोई चीज सीखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कोई नॉलेज सीखते हैं, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं, वो आपका आईक्यू का पार्ट बनता है। इट इज अ पार्ट ऑफ आईक्यू, इमोशन, इंटेलिजेंस कोशेंट। सो डी का 1 होते हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टीम वर्क इज इमोशनल कोशेंट and self-belief and happiness is spiritual quotient. So option number C. Question number 8. In laissez-faire relationship, the students are more cooperative, competitive, authoritative, passive. ये तीनों हमारे गलत हैं। Students are more cooperative, laissez-faire में. So the students have the freedom and autonomy. Such environment encourages the students to work together in a cooperative manner. So this is a feature of laissez-faire relationship. Question number 9. Knowledge is arrived at through gathering of facts that provide basis for laws. हमने पहले facts gather किए और वहां से हमने law को derive किया, यानी हम particular से general की तरफ जा रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, ये हमारा कौन से टाइप का प्रिंसिपल होता है? दिस इज इंडक्टिविज्म। ये इंडक्टिविज्म होता है। इंडक्शन रीजनिंग होती है, डिडक्शन रीजनिंग पढ़ी होगी आपने, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। सो इंडक्टिव रीजनिंग, इट इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक to broader generalizations, like for example, the sun has risen every morning throughout history, therefore the sun will rise tomorrow. अब देखिए, एक निमोनिक में बताती हूँ, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है, PIG, ठीक है, PIG, जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, दैट इज इंडक्टिविज्म, दैट इज इंडक्टिविज्म। एक होता है हमारा GDP,
GDP, जब हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, दिस इज डिडक्टिविज्म, दिस इज इंडक्टिविज्म एंड दिस इज डिडक्टिविज्म. सो ये दो वर्ड्स आप याद रखेंगे, PIG एंड GDP. क्वेश्चन 10, मैच द फॉलोइंग. स्वयं प्रभा के चैनल नंबर्स दिए और उनकी थीम्स दी हैं. प्रबोध, सारस्वत, प्रबंधन, विधिक. देखिए सारस्वत मैंने आपको बताया था, सरस्वती किसकी देवी होती है? विद्या की देवी. सारस्वत एजुकेशन एंड होम साइंस, डी का 1. ठीक है, दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट. विधिक, विधि, लॉ, डी का 3. ऑप्शन नंबर सी. प्रबोध is social and behavioral science and prabandhan is information and management studies. So option number C यहाँ पे हमारा correct option हो जाएगा. Question 11, NEP 2020 recommended the integration of humanities at UG level with the subjects of. NEP 2020 again very important. ठीक है, ये आप इसको प्लीज PYQ के थ्रू ही कवर कीजिएगा, नहीं तो ऐसे बहुत बड़ा वो है फ्रेमवर्क है, तो आप कितना ही कुछ पढ़ेंगे इसमें. तो इन्होंने बोला है कि जो NEP 2020 है उसने रिकमेंड किया है कि हम UG लेवल पे ह्यूमैनिटीज को और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, मैथमेटिक्स के साथ. प्रोपेगेंडा टेक्निक एज सच कुछ होता नहीं है. सो ABCD ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. Question number 12 says, which of the following are not the characteristics of conventional learning? Not the characteristics. अगर इन्होंने पूछा है not the characteristics of conventional learning, not conventional का मतलब क्या हो गया? हमें ट्रेडिशनल लर्निंग की बात पूछी है. ओ सॉरी, क्या बोल रही हूँ, ट्रेडिशनली मॉडर्न लर्निंग की बात पूछी है. मॉडर्न लर्निंग की बात पूछी है. सो एम्फेसिस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी, करेक्ट. स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये उसमें आता है, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल में आता है. नो फिक्स्ड करिकुलम, बिल्कुल. लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच होती है, बिल्कुल. इट रिक्वायर्स रेगुलर अटेंडेंस, नो. सो हमारा ऑप्शन नंबर ACD यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Question 13, which of the following is an ethical concern in computer based testing? CBT का ethical concern बताना है. Use of adaptive testing, immediate score reporting, use of multimedia, test fairness across diverse student population. ठीक है, उन जितने भी हमारे स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें जो फेयरनेस है, दैट इज एन एथिकल कंसर्न ऑफ CBT. Question number 14, which of the following is not an example of innovation in education system? Flipped classrooms, it is an innovative education system. Project based है, gamification है, लेकिन standardized rote learning examination ये नहीं है, क्योंकि ये हमारा conventional form है. ये हमारे conventional form of education आता है, बाकी सारे हमारे इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है. क्वेश्चन नंबर 15, which of the following fundamental principles are highlighted under NEP 2020? ठीक है, हायर एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, नहीं. मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, बिल्कुल. आउटस्टैंडिंग रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन. प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है. सेटिंग अप ऑफ अनदर नॉलेज कमीशन, नहीं. ई तो पक्का से नहीं है, ई नहीं है, ये हटा दिया. अब हमें देखना आउटस्टैंडिंग रिसर्च, रिसर्च को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है. सो BCD ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 16, डैश डिस्क्राइब्स हाउ लर्नर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस. जो वो सोच रहे हैं, ठीक है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस को वो मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं. दिस इज नोन एज मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन. देखिए, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, इट रेफर्स टू व्हाट लर्नर्स डू अबाउट लर्निंग.
जो वो सीख रहे हैं, वो जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं, वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं. सो इट डिस्क्राइब्स how learners monitor and control their cognitive processes. For example, a learner might realize that a particular strategy is not achieving the results they want. जैसे आप है, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे. ठीक है, अब आपका टाइम मैनेज हो रहा है बट आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे. दिस इज मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन. सो जहाँ पे लर्नर्स अपने मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, इट इज नोन एज मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन. Question number 17. Open educational resources are considered innovative because they provide free, adaptable, and shareable learning materials globally. Open educational resources. They are teaching, learning, and research materials that are freely available for anyone to use, share, and modify. Question number 18. In the Socratic method of teaching, the teacher's primary role is to. Socratic method of teaching जो होता है, ठीक है, Socratic teaching method, उसमें टीचर का प्राइमरी रोल क्या है? टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू अराइव एट ट्रुथ थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग. So, Socratic method, it is a form of argumentative dialogue between individuals which is based on asking and answering the questions to stimulate critical thinking and generate illuminative ideas. Question number 19. Which method is most suitable for higher order cognitive skills like analysis, synthesis and evaluation? तो इन चारों में से लेक्चर, प्रोजेक्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग में से जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड होता है, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 20. हमें टाइप्स ऑफ लर्निंग दिए और उसके मीनिंग्स दिए, हमें मैच करनी है. फैक्चुअल, एसोसिएशन, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल. जब हम कोई चीज सीखते हैं, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस या फिर प्रोसेस. दिस इज प्रोसीजरल. तो जब हमें ऑर्गेनाइज करना है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को, इट इज अ प्रोसीजरल लर्निंग. डी का 3. एक ही ऑप्शन से हमारा बन गया ऑप्शन नंबर ए. सो फैक्चुअल क्या हो गया? बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड आइडियाज. कंसेप्चुअल क्या होता है कि हम इंटर रिलेट करते हैं प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को. प्रोसीजर इज हाउ टू. ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्या सीक्वेंस है. मेटाकॉग्निटिव इज अगेन सेल्फ नॉलेज एज अ रिसर्चर. Question number 21. Which of the following best differentiates innovation from reform? Innovation और रिफॉर्म का इन्होंने डिफरेंस पूछा है और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में. देखिए, इनोवेशन इट इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रैक्टिसेस. इनोवेशन क्या होता है? न्यू. और रिफॉर्म क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं. सो रिफॉर्म, the act of making changes to something especially to improve or modernize it, existing को. लेकिन innovation, it is the act of introducing new ideas, methods or products, especially in business or technological terms. Question number 22. Which of the following are the logical steps of instruction design system under MOOC? MOOC के अंदर के हमें logical steps बताने हैं. पॉलिसी एनालिसिस एज सच कुछ नहीं है. नीड एनालिसिस होता है, कंटेंट एनालिसिस है, लर्नर एनालिसिस है, असाइनमेंट एनालिसिस नहीं होता. हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी सी डी इज द करेक्ट आंसर. देखिए, नीड एनालिसिस क्या है कि लर्निंग की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स कि क्यों जरूरी है हमें. कंटेंट एनालिसिस इज एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड लर्नर एनालिसिस इज लर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, बैकग्राउंड एंड द लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ द लर्नर और द स्टूडेंट. सो हमारी 3 तरह के एनालिसिस होते हैं जो हमारे मूक के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिस्टम में यूज किए जाते हैं.
क्वेश्चन 23, फ्लिप्ड क्लासरूम इज कंसिडर्ड एन इनोवेशन बिकॉज, फ्लिप्ड क्लासरूम को हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्यों मानते हैं या इनोवेटिव पेडागोजी क्यों माना जाता है? बिकॉज इट रिवर्सेस द टीचर स्टूडेंट रोल परमानेंटली? नो. It eliminates textbook and replaces with e-content? No. It focuses on rote learning? No. It shifts the direct instruction outside the classroom and it uses the class time for active learning. देखिए, ट्रेडिशनल जो मॉडल था उसमें क्या होता था कि क्लास टाइम पे बच्चों को सिखाया जाता था, ठीक है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। और जो नॉन क्लास टाइम है यानी घर पर एट होम, ठीक है, दे वर गिवन द असाइनमेंट्स और दे वर गिवन प्रोजेक्ट्स वगैरह। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? फ्लिप्ड मॉडल इज उल्टा। क्लास में उनको हम प्रोजेक्ट्स दे देंगे या फिर हम उनको असाइनमेंट्स दे देंगे जहाँ पे वो एक्टिव लर्निंग कर सके, जहाँ पे वो एक्टिव लर्निंग कर सके। लेकिन घर में एट होम उनको क्या दिया जाता है? उनको कुछ भी याद करना है, ठीक है, कुछ भी रिमेम्बर करना है या कुछ भी अंडरस्टैंड करना है, रोट लर्निंग करनी है, वो उनको हम घर के लिए दे देते हैं काम। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ फ्लिप्ड क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 24, MOOC इकोसिस्टम में लर्निंग एनालिटिक्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द लर्नर एंगेजमेंट एंड प्रिडिक्टिंग द ड्रॉप आउट्स। देखिए, लर्निंग एनालिटिक्स में क्या होता है? सबसे पहले ये कंप्यूटर बेस्ड में यूज होता है लर्निंग एनालिटिक्स, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स में यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मैंने कोर्स लॉन्च किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का MOOC पे कोर्स लॉन्च किया है। मैंने देखा कि 100 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर दिया, 100 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द हेल्प ऑफ लर्निंग एनालिटिक्स मुझे पता चला कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में आते ही नहीं है। उन्होंने एनरोल किया है बट ना वो क्लास में आ रहे हैं, ना वो कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ना वो कोई डाउट पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो मुझे पता चल जाएगा कि ड्रॉप आउट्स का रेट कितना है, ठीक है, उसमें एंगेजमेंट बच्चे कितनी, जैसे वो ऐसे कुछ बार चार्ट आ जाएगा, मे बी ऐसे कुछ करके लाइन चार्ट आ जाएगा, ठीक है, कि प्रोग्रेस शो कर रहा है बच्चों की, कि बच्चे कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी? मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे इंटरवीन करना है, कहाँ पे मुझे अपने कंटेंट को ठीक करने की कोशिश करनी है मैं, और इसको कैसे इंटरैक्टिव बना सकती हूँ कि ये जो 25 बच्चे हैं ये भी आ जाए, ठीक है, 100 से 100+ मेरे एनरोलमेंट हो जाए। सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे लर्निंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस इज नोन एज diagnostic, summative, ipsative या informal. So it is called ipsative assessment. Option number C. देखिए, diagnostic क्या होता है? What students already do know and do not know about a topic. हम diagnose कर रहे हैं कि बच्चे को कहाँ पे तकलीफ आ रही है। Formative क्या होता है? During the class instructions. Summative क्या होता है? After the, मतलब जो हमारे final terms होते हैं या end semester exams होते हैं। Criterion reference प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड हम उनको पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। बट इप्सेटिव क्या होता है? व्हेन दे आर कंपेयर टू देयर ओन प्रीवियस स्कोर, बच्चे को खुद के साथ। मेरे पिछले टेस्ट में 10 में से 5 मार्क्स आए थे, इस बार मेरे 10 में से 7 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो मैंने कंपेयर किया कि मेरे पिछली बार 5 नंबर आए थे, इस बार मेरे 7 नंबर आए, तो मैं इंप्रूव कर रही हूँ। दिस इज इप्सेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following best explains why Skinner's conditioning differs from Pavlov? तो इसमें बेसिकली स्किनर और पावलोव का डिफरेंस पूछा है, स्किनर वर्सेस पावलोव। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग पेयर्स टू स्टिमुलाई व्हाइल क्लासिकल कंडीशनिंग यूजेस रीइंफोर्समेंट, गलत लिखा है। क्लासिकल कंडीशनिंग फोकसेस ऑन वॉलंटरी, ऑपरेंट फोकसेस ऑन रिफ्लेक्सेस, गलत। Operant strengthens voluntary response through consequences, while classical forms association between stimuli. Correct, और ये भी गलत है, ठीक है। Consequences, operant
स्किनर ने दिया था हमारा ओपोनेंट, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। पैवलोव ने क्या दिया था हमारा, ये क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ऑपरेंट का क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, द की डिफरेंस बिटवीन CBT एंड CAT। देखिए CBT इज कंप्यूटर बेस्ड एंड CAT इज कंप्यूटर अडेप्टिव। जो हम UGC नेट का एग्जाम देते हैं, नेट एग्जाम, इट इज अ CBT टेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो पहले से फिक्स होते हैं, फिक्स्ड आइटम्स होती हैं। लेकिन जो CAT है, दैट इज कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट, उसमें क्या होता है, कोई बच्चे ने, जैसे एक बच्चे को हमने 5 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, एक स्टूडेंट है, आप खुद को कंसिडर कीजिए, आप टेस्ट देने बैठे CAT का, तो CAT का नहीं, मतलब CAT इज कंप्यूटर अडेप्टिव, एक सॉफ्टवेयर होता है। आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपका ठीक हुआ, आपने दूसरा क्वेश्चन दिया, ठीक हुआ, कंप्यूटर को पता लग गया कि आपको नॉलेज है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है ना, उसका जो लेवल है ना, वो उसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देगा। कंप्यूटर ने अडेप्ट कर लिया आपके हिसाब से। अब आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने पहला क्वेश्चन दिया, ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया, गलत हो गया, तीसरा क्वेश्चन दिया, गलत हो गया। अब उसको क्या पता लगा कंप्यूटर को कि जो इसका लेवल है या जो इसको नॉलेज है वो कम है, तो वो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है ना, उसका लो टू इजी क्या होगा, उसका लेवल हो जाएगा। So this is computer adaptive. Computer is adapting to your knowledge. This is the difference between CBT and CAT. तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So that is all for today's class. ठीक है, these are the social media handles of JC Academy. आप प्लीज इनके थ्रू कनेक्ट हो जाइए ताकि आप अपडेटेड रहे अबाउट द अपकमिंग क्लासेस। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। Thank you so very much. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.